this was a new thing to all of you, confusion matrix. So what is confusion matrix? We are going to discuss that first, then I'll let you know how and why we use that. Fine. So to check that, this is the PDF which I'm sharing with you. My screen is visible to all of you. So guys, you remember one thing when we were going through with the logistic regression. So we were checking each and every data point, like what is the predictive probability they have given to that to be positive or negative or whatever the use case we were using. You remember that file we were predicting insurance, like is that person is likelihood to buy the insurance or not. So we have used a function predict probability there. So what that function was doing, that was giving us the probability of that particular record for being yes or no. Yes, ma'am. You all aware of it? So is it possible for you to check each and every record that what is the probability of each and every record for being yes or being no? It's not possible, right? So we need something where we can check the behavior of our classification model. Like how they are making predictions, is there any error, and how accurate the classification model is. So to check that, they have given us the evaluation matrix, which is confusion matrix. So confusion matrix, you all know how to create a contingency table, cross tab in Python. Yes, ma'am. All aware of it, how to use cross tabulation in Python? Is there anybody who don't know how to create cross tabulation table in Python? Yes or no? I'm not getting responses. You all know or not? You all know how to create a cross tabulation table? Yes, ma'am. Fine. So that part you aware of it, that how to create a contingency table. So confusion matrix is a contingency table which we all know how to create that. So while we are applying confusion matrix for a particular classification problem, so it shows us that in which your classification model is confused when it makes prediction. You see here, the confusion matrix shows the way in which your classification model is confused when it is making some predictions. So for example, there is something which was actually true, and when we make predictions, so your model is giving that true or false, that you need to check. You see that example, this picture. So here the true state is the cancer or no cancer to a particular patient. So we are making we are building our model to diagnose that. So based on the historical data, so that we can predict that that person is having cancer or not. So why, please mute from your end. So while we are doing this, while you create a model, so first you validate or you check that when you distribute your data into two-part training and testing. Is that make sense to you? Yes, ma'am. So we need to validate that whether our model is working perfectly fine or there is some problem with that. Obviously that you need to check before pushing that model to the production level. First we need to check that how your model is working. What is the behavior of your model? Right? So this is the example, and here these are the true states, and these are the actual states, and this is the predicted states. So let's say actual we have divided into two parts, no cancer and cancer, and the same thing is for the prediction. The diagnosis means the prediction part, and the true state means the actual one. So the thing you see two parts here, no cancer means
Actually there was no cancer to that patient, and when we are performing diagnosis you get that true negative value for that record. एक्चुअल में भी नहीं था और आपने जब प्रेडिक्शन की तब भी उसने ट्रू नेगेटिव दिया, मींस योर टेस्ट फॉर दैट रिकॉर्ड योर प्रेडिक्शन इज वर्किंग फाइन, that is correctly predicted. But in case that no cancer was the true state, but when you perform diagnosis and it's giving you that the person, that particular person is having cancer, so we call that situation a false positive. The confusion matrix is created by two values, the actual value or the predicted value. So the actual is, yes, मैम मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था मैम, आप फिर से बता दीजिए। I have recorded that session, you can check it out. Also I'm trying to repeat it. So the confusion matrix is a way where you can check that how your model is behaving, how your model is giving predictions. So let's say the actual state you divided into two parts, no cancer and cancer, and the same thing you are predicting, no cancer and cancer. So you need to check this part, the person who is already having cancer, and when you perform a diagnosis, so based on your model this is also giving that but for a particular record that person is having cancer, means true negative values are there. एक्चुअल में था और जब आपने प्रेडिक्शन लगाई तब भी उसने ट्रू मतलब उसने दिया कि नहीं है या है, एक्चुअल में जो सिचुएशन थी वही आपको प्रेडिक्ट करने के बाद भी मिलती है. सो वी कॉल दैट अ ट्रू नेगेटिव. यू अंडरस्टैंड? ट्रू पॉजिटिव होगा ना? आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, पहले ट्रू पॉजिटिव भी आ सकता है, ट्रू नेगेटिव भी आ सकता है. आई एम यूजिंग टू बोथ वे, फर्स्ट द ट्रू नेगेटिव वन देन द ट्रू पॉजिटिव वन. सो यहाँ देखिए हमने पहले नो केसेस लिए, नो कैंसर मीन्स ट्रू नेगेटिव, कैंसर नो कैंसर फॉल्स नेगेटिव, कैंसर ट्रू पॉजिटिव. सो ट्रू व्हाट इज ट्रू नेगेटिव? True negative means the number of true negative means patients who did not have cancer whom we correctly diagnosed as not having cancer. पहले से था भी नहीं और आपने जब diagnosis perform किया तब भी diagnosis में आया कि they are not having cancer. We call that part a true negative. You got it? And what is true positive? True positive may... yes. Is there anybody? Any question? Any question to true negative? Then we come to the true positive part. True positive means the number of true positive is the value where patient who did have cancer whom we correctly diagnosed as having cancer. Means जो actual state थी prediction के बाद भी आपको वही state मिलती है. We call that true negative and true positive. क्योंकि किसी भी चीज के होने ना होने के दो केसेस होंगे, जो एक्चुअल में भी नहीं थी और जब आपने प्रेडिक्ट किया तब भी नहीं है, और दूसरा केस है जो था और प्रेडिक्शन के बाद भी आपको पॉजिटिव मिलता है. सो ये दोनों को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ट्रू नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव. ट्रू नेगेटिव इज द स्टेट वेयर ऑलरेडी नहीं था और आपने प्रेडिक्शन किया तब भी नहीं आया. ट्रू पॉजिटिव वो स्टेट है जब कैंसर था बट व्हेन वी हैव प्रेडिक्टेड तब भी आपको पॉजिटिव मिला वो पेशेंट. सो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें दो पार्ट इसने ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव के दिए. ये हमारी करेक्ट प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रेडिक्शंस में हमारे एरर भी तो हो सकते हैं. वो एरर जो हमें निकालने होंगे वो हमारे फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव में होंगे. फॉल्स पॉजिटिव आपकी वो वैल्यू फॉल्स नेगेटिव आपकी वो वैल्यू होती है पेशेंट हु डिड हैव कैंसर whom we incorrectly diagnosed as not having cancer. मीन्स कैंसर उसको था बट आपने जब डायग्नोसिस परफॉर्म किया तो आपकी रिपोर्ट में आया कि द पर्सन इज नॉट हैविंग कैंसर. सो व्हाट इज द स्टेट? दैट स्टेट इज फॉल्स नेगेटिव. क्लियर विद दिस? अ बिट कंफ्यूजिंग, ये जो चारों आपके क्लासिफिकेशन पार्ट्स हैं बिट कंफ्यूजिंग, बट आप एक्चुअली उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज फॉल्स नेगेटिव, व्हाट इज ट्रू नेगेटिव. फॉल्स पॉजिटिव आपका कौन सा केस है? जब पेशेंट को कैंसर नहीं था बट आपने गलती से आपके टेस्ट में उसको कैंसर आ गया. सो इन दोनों ही केस में प्रॉब्लम है. वी हैव प्रॉब्लम इन बोथ केसेस.
अगर नहीं था और तब आप उसको बोलते हो कि है तब भी प्रॉब्लम है, और अगर है और फिर आप बोलते हो नहीं है तब भी प्रॉब्लम है. So false negative and false positive both are creating errors. Although आपके जो ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव है ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, विच इज द करेक्ट पैरामीटर. सो ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्लियर विद दिस पार्ट? सो अब देखिए, जब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, हमने यहाँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई थी तो आपको कुछ और नई चीजें भी यहाँ पे मिली है. दैट द वैल्यूज प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, एक्यूरेसी, ये अभी आप इग्नोर करेंगे. एक्यूरेसी, प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, दैट वी नीड टू चेक. सो व्हाट इज दिस? अब प्रेसिजन रिकॉल क्या होता है? प्रेसिजन क्या होता है? करेक्टली प्रेडिक्टिव पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल प्रेडिक्टिव पॉजिटिव, मींस ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. इसका मतलब ये होता है, ये आपको वो प्रोपोर्शन बताएगा, वो पर्टिकुलर पार्ट आपको बताएगा where we diagnose as having cancer actually had a cancer. प्रेसिजन आपको क्या स्टेट बता रहा है? आप कैलकुलेट करें, ये फॉर्मुलेज आपसे पूछे जाते हैं. 99% पीपल आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिजन एंड रिकॉल एंड व्हाट एक्चुअली द प्रेसिजन इज एंड व्हाट एक्चुअली द रिकॉल इज. So precision, when we are calculating the precision means the correctly predicted positive divided by total predicted positive. अब ये आपको नहीं पता है कि जो predicted positive है वो सारे उसने सही predict किए हैं, उसमें कितना एरर है, दैट यू नीड टू फैच. उसके लिए वी हैव रिकॉल. देखिए यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा आपको ये चीज. रिकॉल आपका क्या बताता है? करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव डिवाइड बाय टोटल करेक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस. तो टोटल करेक्ट में आपका फॉल्स नेगेटिव आता है. टोटल करेक्ट, जो फॉल्स नेगेटिव भी तो आपका करेक्ट वाला पार्ट है, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका टीपी ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये रिकॉल का फॉर्मूला है. बट अगर आप प्रेसिजन कैलकुलेट करेंगे तो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव वाली है रिकॉल में. ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. अब यहाँ पे देखिए दोनों में बहुत माइनर से डिफरेंस है. प्रेसिजन आपको ये बताता है कि what proportion of patients we diagnose as having cancer actually had a cancer. जबकि रिकॉल आपको क्या बताता है? what proportion of patient that actually had cancer were diagnosed by us as having cancer. अब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जिनको कैंसर था वो आपके डायग्नोसिस के बाद आपको कितनी वैल्यू मिली है वो रिकॉल बताता है. देखिए इसमें इसको कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको अपनी एक अप्रोच दी है, विच आई ऑलवेज पुट टू मेमोराइज दैट. यहाँ देखिए, अब ये जो पार्ट है ट्रू स्टेट है, डायग्नोसिस स्टेट, यहाँ पे हमारा दिस पार्ट ये आपका प्रेसिजन है, द ग्रीन वन. ग्रीन वन इज द प्रेसिजन एंड द रेड वन इज द रिकॉल. यू गॉट इट? अब देखिए जब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो आपसे एक्यूरेसी रेट भी पूछता है. वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ योर क्लासिफिकेशन मॉडल. सो एक्यूरेसी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ट्रू पॉजिटिव. हाँ बोलिए मैम. हमेशा ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव में कंफ्यूजन होता है. हाँ, मैं अभी एक और एग्जांपल मैंने रखा है, मैं आपको उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी. उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो फिर आप मुझे बताइए. पुट इट सम मोर एग्जांपल्स एज वेल. अब यहाँ पे देखिए एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी हमारा आपका जो मॉडल है वो हाउ ऑफन इज द क्लासिफायर करेक्ट, उसका परसेंटेज आपको देता है. तो परसेंटेज आप कैलकुलेट करने के लिए ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय द होल बाइनरी क्लासिफिकेशंस. उसमें आपके पास सारे क्लासिफिकेशंस आ जाएंगे, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. तो ये जो स्कोर आएगा that is the accuracy rate of your classification model. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, you check this part. Recalls tells you how much of the positive you can find, although the precision tells you how much junk there is in your predictive positives. You understand the difference between two now? Recalls tells you how much of the positive you can find from a record or from your model.
प्रेसिजन टेल्स यू हाउ मच जंक देयर इज इन योर प्रेडिक्टेड पॉजिटिव्स। जो आपने प्रेडिक्ट करके पॉजिटिव वैल्यूज निकाली हैं उसमें से कितनी जंक वैल्यूज अवेलेबल हैं वो आपको प्रेसिजन से पता चलता है। और रिकॉल आपको बताएगा टोटल पॉजिटिव विच यू कैन फाइंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। इज इट क्लियर टू यू? कुछ समझ में आ रहा है कि व्हाट इज प्रेसिजन एंड व्हाट इज रिकॉल? आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेस। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मतलब रिकॉल ये बताता कि कितने पॉजिटिव है, और हाँ, जो प्रिसीजन है वो बताता जितने हमने पॉजिटिव निकाले उनमें से पॉजिटिव कितने जो सही आपने है। प्रेडिक्ट की है उनमें से कितने सही हैं, मतलब कितना जंक आपके उस प्रेडिक्टेड पॉजिटिव में अवेलेबल है। ओके। अभी एक और एग्जांपल हम लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमने एक लिस्ट ली है। पहले तो हमने ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव रखा। हियर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रू पॉजिटिव। इस लिस्ट को, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हमने ट्रू नेगेटिव से स्टार्ट किया था। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ट्रू पॉजिटिव एज वेल। दोनों तरीके से वाइस वर्सा ले सकते हैं। सो हियर यू सी इन दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअल क्लासेस आपकी दो है, मेल एंड फीमेल, एंड यू प्रेडिक्टेड क्लासेस आपकी फॉर मेल एंड फीमेल। यू नीड टू चेक जब एक्चुअल में मेल था और प्रेडिक्शन के बाद भी मेल मिला। सो एक्चुअल मेल और प्रेडिक्टेड मेल दोनों आपका ये ट्रू पॉजिटिव रेट है 42। यू चेक दैट पार्ट फ्रॉम देयर। मींस उस रिकॉर्ड में मेल कितने थे? हाँ हाँ, वो आपको एक्चुअल में जो एक्चुअल भी जितने थे और वो लेबल्ड भी आपने सही किए। ट्रू पॉजिटिव से मतलब होता है डेटा पॉइंट्स लेबल्ड एज पॉजिटिव दैट वर एक्चुअली पॉजिटिव। इस वाले कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमें लेबल डेटा मिलेंगे ना सारे? हाँ हाँ, आपको ट्रू पॉजिटिव वो डिस्ट्रीब्यूट करके दे देगा ना पूरे। लेट से आपने 100 रिकॉर्ड्स हैं तो 100 रिकॉर्ड्स में आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में जो प्रेडिक्टेड निकले कितने सही हैं और कितने गलत प्रेडिक्ट उसने किए हैं। तो इस केस में यहाँ पे देखिए, इस वाली कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये आपको ये बताता है, दिस मींस दैट द क्लासिफायर करेक्टली प्रेडिक्टेड अ मेल पर्सन इन 42 केसेस। यू चेक दैट हियर। 42 केसेस में उसने करेक्ट प्रेडिक्ट किया है, लेकिन 8 केसेस में it wrongly predicted 8 male instances as female. We are not very sure that these 8 will come under male or a female, but उसने wrongly उसको male instances को as female predict किया है। अब ये 8 जो है वो किधर भी जा सकते हैं। It can be a part of male as well or female as well, but they have put it that under female category. देखिए, जिसकी आपको श्योरिटी नहीं है आपने उसको दूसरी कैटेगरी में रखा है। जिसमें आप 100% श्योर है वो आपका ट्रू पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव इज दिस केस 42। अब दूसरा देखिए केस क्या है, करेक्टली प्रेडिक्टेड 32 इंस्टेंसेस एज फीमेल। यहाँ देखिए उसने 32 इंस्टेंसेस जो एक्चुअल में 32 फीमेल एक्चुअल में भी थे और जो प्रेडिक्टेड आपने प्रेडिक्शंस लगाई हैं तब भी आपको 32 मिले, लेकिन जो 18 इंस्टेंसेस हैं यू आर नॉट clear with that. You are confused with these two records 8 and 18. So once you calculate the accuracy of this, तो accuracy कितना हो जाएगा, this one plus this one divide by the whole the 4 values, उससे आपका accuracy rate निकल जाएगा। देखिए जितने यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, टोटल रिकॉर्ड्स तो आपके पास इतने ही अवेलेबल है ना। जितने आपके पास टोटल रिकॉर्ड्स थे वही तो आपके एक्चुअल और प्रेडिक्टेड टोटल, तो आपके पास यही वैल्यूज हैं जो आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आपको इससे ये पता चलता है कि आप जब कंफ्यूजन मैट्रिक्स डेवलप करते हैं तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा पॉइंट्स का, उससे आपको ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव पता चल जाते हैं कि हाँ मतलब रोंगली कितने प्रेडिक्टेड है, किसमें आपको चेक करना है और एक्यूरेसी कितनी आ रही, दैट यू नीड टू चेक। अब ये जो चारों आउटकम है यहाँ देखिए, ट्रू पॉजिटिव क्या होगा, डेटा पॉइंट्स लेबल्ड एज पॉजिटिव दैट आर एक्चुअली पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव से मतलब क्या है, डेटा पॉइंट्स लेबल्ड एज पॉजिटिव बट वो एक्चुअल में नेगेटिव है। तेजस्विनी, फॉल्स पॉजिटिव से मतलब ये है कि जो आपने लेबल पॉजिटिव किए हुए हैं बट दे आर एक्चुअली नेगेटिव। And when we are talking about the true negative parts, so data labeled as negative and that data is actually negative.
right? False negative is the case when data points as negative, labeled as negative, but actual में वो positive है, तो वो आपका false negative rate हो जाएगा. So these are the 4 outcomes which are coming from this confusion matrix: true positive, true negative, false positive, false negative. So from this part, yes. मैम ट्रू पॉजिटिव मुझे क्लियर है एंड फॉल्स पॉजिटिव जो नेगेटिव है वो भी क्लियर है, बट जो फॉल्स पॉजिटिव है जो ट्रू नेगेटिव है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है. देखिए हम 32 जो हमारा जो 32 केस था यहाँ पे वो फीमेल का था, राइट? 42 हमने करेक्ट प्रेडिक्ट किया था कि वो आपका मेल है. तो वो तो चीज समझ आ गई मुझे कि चलो ट्रू पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव ट्रू नेगेटिव केस हो गया. हाउ वंस यू बिल्ड योर मॉडल, सो you are train और टेस्ट में जब आप अपने मॉडल को डिवाइड करते हो, that you can check that based on the training and testing data when you pass some records, so you can check it out जो एक्चुअल में आपके पॉजिटिव थे वो उसने जब आपने डायग्नोज किया, जब आपने टेस्ट परफॉर्म किया, प्रेडिक्शंस लगाई, जो एक्चुअल वैल्यू थी प्रेडिक्शन के बाद भी वही आती है, तो वो आपकी ट्रू पॉजिटिव है. लेकिन फॉल्स पॉजिटिव रेट आपका वो है जो एक्चुअल में पॉजिटिव थी, लेकिन जब आप प्रेडिक्शंस लगाते हो तो वो वैल्यू नहीं आती जो पहले से थी. Let's say there are some records which were male, but when you perform analysis or perform a prediction, then that gives us that particular record as female. So that is false positive. आपके पास एक्चुअल में वो डेटा लेबल्ड एज पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव है. ये दोनों जो केसेस हैं, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, इन दोनों केसेस में एक्चुअल में जो होता है वो प्रेडिक्शन में नहीं आता. जो आपके दोनों फॉल्स केसेस हैं, अभी समझ में आई ये चीज? अभी देखिए, आई हैव पुट इट one more real time example, might be based on that example you are clear with that part. अभी देखिए हाँ जी, ये जो हमारा ट्रू पॉजिटिव ये 4 जो कैटेगरीज बनती है, that is basically dependent upon probability of occurrence and non occurrence, है ना? राइट. अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये चीज 5 बार होगी और वो हो भी गई तो that is true positive, right? हाँ, राइट. और अगर हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये 5 बार होना चाहिए अकरेंस, लेकिन वो 5 बार नहीं होता तो दैट इज ट्रू नेगेटिव. हाँ, राइट. 5 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. नहीं, वो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि मान लो जो चीज हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और वही चीज हो रही है तो दैट इज ट्रू पॉजिटिव. जो एक्चुअल में है और प्रेडिक्शन के बाद भी वही आई है, वही आ रही है, तो दैट इज ट्रू पॉजिटिव, है ना? तो अगर वो जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो नहीं हो रहा है तो दैट इज फॉल्स पॉजिटिव, राइट, है ना? तो वो जो दूसरे ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव है दैट इज एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ द ट्रू पॉजिटिव. हाँ, ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट हैं. वो तो देखिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए इस चीज को. ट्रू पॉजिटिव आपका वो डेटा है जो एक्चुअल में भी पॉजिटिव था और जब आप प्रेडिक्शन लगाते हो तब भी पॉजिटिव आता है. फॉल्स पॉजिटिव आपका वो डेटा है जो एक्चुअल में आपका नेगेटिव था लेकिन जब आप प्रेडिक्ट करते हो तो पॉजिटिव आता है. सो पॉजिटिव को आपने फॉल्स प्रेडिक्ट किया, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू आई है वो आपकी फॉल्स वैल्यू आई है जबकि वो नेगेटिव थी, तो वी कॉल दैट अ फॉल्स पॉजिटिव. मींस दैट वाज एक्चुअली नेगेटिव बट यू लेबल्ड दैट डेटा एज पॉजिटिव. ये कौन सा केस है? कैंसर नहीं था लेकिन आपने बता दिया. The patient was actually not having cancer, but when you perform a diagnosis, then you check that person is having cancer. So it will come under false positive. And true negative means you labeled negative and that was actually negative. Means the person was not having cancer, but when you perform a diagnosis or prediction, then also you get the output as not having cancer. So it will come under true negatives. And for the false negative, it is the just opposite of false positive. कैंसर है, हाँ, उसे कैंसर है और हमने कहा कि आपने उसको, हाँ, राइट, you predicted that the person is not having cancer, so it will come under false negative.
You got it? Yes, ma'am. All clear with this part, that how these values are calculated and what is the meaning of true positive, true negative, false positive and false negative? Any confusion to anybody? No. Now you come to the recall and precision once again. You understand the formula of recall and precision? Recall basically the ability of a classification model to identify all relevant instances. Means out of all the positive classes, how much we predicted correctly. If you have a high recall, that means your model is performing well. But it is not always true. And the formula to calculate recall is true positive divided by true positive plus false positive. False negative. This is negative. Sorry. I'll fix it. This is negative. Right? And for the precision, ability of a classification model to return only relevant instances. Means out of all the positive classes we have predicted correctly, how many values are actually positive. ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपने मॉडल ने जब प्रेडिक्ट किया तो सारा उसने पॉजिटिव प्रेडिक्ट करके दे दिया. बट इज इट ऑलवेज ट्रू दैट ऑल द प्रेडिक्टेड वैल्यूज आर all the positive predicted values are actually positive? Make sense? Make sense or not? Yes. Then we have a different accuracy measure, which is F1 score. So F1 score is a measure of test accuracy. We have to calculate that and we need to check that value as well. It means both the precision and the recall of the test to compute the score using harmonic mean. How you calculate the F1 score? You multiply precision and recall and then multiply again with 2 and divide by precision plus recall. The harmonic mean. So F1 score, that also you need to check. I'll explain you the meaning of F1 score as well with some examples. So apart from this, there are certain things that people can ask you, that what is the true positive rate and what is the false positive rate. So just to calculate true positive, that should be true positive divided by true positive plus false negative. And how you calculate positive values? What are the all positive values? All positive values are under true positive plus false negative only. You check that from here. You check that from here. Positive are under true negative and true positive only. These are the correct. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है. Just wait. Video on over. Is it visible now? Yes, ma'am. Fine. So the true positive or the correct values are under true negative and true positive only, and the errors are under false negative and false positive only. So how you calculate positive and negative part of a confusion matrix? From this formula. True positive rate is what? True positive divided by true positive plus false negative. And in case I need to check the actual positive values, so actual positive values are under true positive and false negative only. So we are adding these two and we get the actual values. Actual positive values are under true positive plus false negative, and actual negative values are under true positive, false positive plus false negative. Yeah, that I need to fix. I have prepared this PPT today only. I'll be sharing this part. देखिए एक मैं एक एग्जांपल से इसको पूरा आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी. You check this part. Let's say it's a real life example where you can understand what is precision and what is recall. Let's say you are chatting with your friend and your mom calls. Try to understand this situation. So you mom says that bring some item from the shop, guests are coming in the evening. You say that okay mom, tell me what to bring.
अभी मॉम ने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए, आप उसको भूल जाते हो. As you were busy in chatting, you couldn't remember the items your mom asked you to bring. So you try to recall it, try to understand the concept recall. So you try to recall it in your memory, means you're remembering something, and finally you remember that part and you bought some item from the shop. Once you reach home, then your mom asks you to bring then you get to know that your mom asked you to bring 4 items only, but you brought 6 items. 4 वो जो मॉम ने बोला था और 2 आप एक्स्ट्रा ले आए. सिचुएशन समझे आप? आपको 4 आइटम लाने के लिए बोला गया था, बट आप भूल गए. आपने वो बाद में यू ट्राई टू मेमोराइज दैट. You bought all 4 items which were asked you to bring, and then you added 2 extra. So अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि जो आपसे पूछा गया था आपने वो सब कर दिया. इस केस में आपका जो रिकॉल है that is 100%. What is the precision here? इस केस में आपका प्रेसिजन क्या होगा? प्रेसिजन 100% नहीं होगा सर. 100% नहीं होगा. Why? क्योंकि आपको 4 बोला गया था, आप 2 एक्स्ट्रा ले आए. एक्चुअल जो था वो 4 था, but you have added 2 into that. So that 2 is the junk that you need to find. So precision ये is what is the precision here? Precision आपका है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपसे बोला गया था आपने सब कर लिया, तो ये भी आपका 100% होना चाहिए. बट प्रेसिजन 100% इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेसिकली प्रेसिजन से मतलब होता है कि व्हाट आर द थिंग्स यू ब्रॉट दैट वाज एक्चुअली नीडेड, रेलेवेंट रिजल्ट्स, एंड द रेलेवेंट रिजल्ट वाज 4. एंड हाउ मेनी यू बॉट? यू बॉट 6. सो द प्रेसिजन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका 66.6% जाएगा. एक्चुअल डिवाइड बाय जितने आपके पास टोटल है एंड मल्टीप्लाई बाय 100. So that is precision. So you understand what is precision and what is recall? Any confusion with precision and recall? Tejashwini, precision recall is clear to you? देखिए बहुत माइनर से डिफरेंस है प्रेसिजन और रिकॉल में. प्रेसिजन से आपको फाइंड करना होता है कि व्हाट जो एक्चुअल में आपको चाहिए था उसमें आपने क्या एक्स्ट्रा किया. राइट? प्रेसिजन में आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, रिकॉल को उससे फर्क नहीं पड़ता. रिकॉल को तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया. You were looking for 4 items, 4 you bought. So recall is 100% fine. But precision is what? अगर आप उससे एक्स्ट्रा, आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. मैम ये जो प्रेसिजन और रिकॉल है किसी भी मॉडल के लिए हम मतलब ट्रेन सेट पे करते हैं ना चेक. देखिए जब आपने ये फाइल देखी है, दिस वन, जब आप क्लासिफिकेशन मॉडल बिल्ड करते हो, क्लासिफिकेशन की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपने क्लासिफाई कर लिया. तो देखिए जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, यू रिमेंबर दैट पार्ट, जब हम प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे तो वो आप 1 by 1 चेक कर रहे थे. तो 1 by 1 चेक करना इज नॉट पॉसिबल. तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको द होल रिकॉर्ड्स हाउ दे हैव क्लासिफाइड, करेक्टली क्लासिफाइड होने किया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, कितना करेक्ट क्लासिफाई किया है और कितना उसने किसमें प्रॉब्लम है, दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स. किसी भी चीज को जब आप क्लासिफाई करते हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन है वो कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है. दैट यू आल्सो नीड टू इवेलुएट. सो confusion matrix is the evaluation part to evaluate the classification problem. RMSC is for logistic or the regression part. I'll let you know that as well.
RMSE आप निकालते हो कि जो आपके रिग्रेशन की प्रॉब्लम है उसमें इवेल्युएट करने के लिए यू चेक RMSE, मीन स्क्वायर एरर। उससे आपको पता चलता है कि जो आपका रिग्रेशन मॉडल है हाउ दैट इज वर्किंग। Confusion metric for the classification problem. For each and every classification problem, you have to check confusion. You have to apply confusion metrics to check the behavior of your model. मैम वो काम तो हम स्कोर से भी कर सकते हैं ना? किससे कर सकते हैं? स्कोर निकालते जब हम मॉडल का। I'm not getting your voice is bit breaking. हेलो मैम, मैम जब हम स्कोर निकालते किसी मॉडल का। नहीं, देखो स्कोर से आपको, आप ये दोनों चीजों में फर्क समझिए तेजस्विनी। स्कोर इज अ डिफरेंट पार्ट। स्कोर तो आपको उस चीज का भी दे दिया ना कि जो गलत था बट उसने सही प्रेडिक्ट करके दे दिया, तो स्कोर तो उससे भी तो बिल्ड होगा आपका। यहाँ देखिए, आपके पास जिस पेशेंट को कैंसर नहीं था बट आपने फिर भी उसको कैंसर डायग्नोज कर दिया, तो स्कोर, उससे स्कोर पे तो फर्क पड़ेगा ना, राइट ना? तो स्कोर आपका एक्चुअल पार्ट नहीं बता रहा है। सिर्फ स्कोर इज नॉट द ओनली मैट्रिक्स टू इवैल्यूएट योर मॉडल। सिर्फ स्कोर ही आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप मॉडल इवैल्यूएट करोगे। आप अभी तक जो आपने सीखा है उसमें आप स्कोर चेक कर रहे हो, अभी फर्दर आपको रिफाइनमेंट करने हैं। हाँ प्रशांत बोलिए। हम ये कह रहा हूँ, ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने निकाली है, इसमें हमें जो अलग अलग पैरामीटर्स मिले हुए, रिकॉल और प्रिसीजन और ये F1 स्कोर, तो इसका क्या हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडल के रिगार्डिंग, हम क्या बता सकते हैं? प्रशांत अभी हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये तो डिस्कस किया कि रिकॉल ऑफ और जो आपका प्रेसिजन है, इससे हमें क्या पता चलता है? रिकॉल और प्रेसिजन से हमें ये पता चलता है कि जो एक्चुअल था वो एक्चुअल उसने कितना प्रेडिक्ट किया है, और जो एक्चुअल नहीं था उसको उसमें कहाँ सही प्रेडिक्ट किया है, कहाँ गलत प्रेडिक्ट किया है। मैम परसेंटेज वाइज इंफॉर्मेशन है जो भी है। प्रेसिजन और रिकॉल का जो हाई आपका रिकॉल होना चाहिए, जितना आपका रिकॉल हाई है मतलब आपकी वैल्यू सही है, और अगर आपका प्रेसिजन जितना कम है उतना अच्छा आपका मॉडल है। बट हमेशा ऐसे केसेस नहीं होंगे, उसके भी आई विल बी टॉकिंग टू दोस पॉइंट्स एज वेल। मैम हाँ बोलिए। मैम, अगर कोई पूछता है कि ये रिकॉल एंड प्रिसिजन किस उस पे एल्गो पे काम करता है, तो हम क्या